So let me start now. First, give you just a brief about what we did yesterday, then continue. So, ladies and gentlemen, in the last week, we completed, we learned, and even we looked at that what is, for example, the TCP/IP, very important model. How this model is working in the internet, And we have seen that the 5 layers of this model are the following. On the top, we have the application layer. Then we have the transport layer. Then we have the network layer or the internet layer. Then we have the data link layer. And finally, we have the physical. Okay. And we have seen also by using the packet tracer, and what we did, if you remember, that we took a PC where we are running a web client, and there was a server which was running a web server application, right? And the client sent an HTTP request to the server, and the server responded with the HTTP reply. Okay, so we have seen that is the HTTP request, and that is the HTTP, and we know what is HTTP. That is a protocol which is used for web applications. Okay, so we have seen that at the server and the client and the server, there is this request passes to different layers and finally reaches the physical layer, and then this through the physical layer and the medium, it passes, which was in this case, which we took in the example, was a copper medium, which means it was just a straight cable, you may say, or in this case the cross cable, maybe, or maybe a switch in between, doesn't matter. So the data was traveling to different layers, and each layer was important. A point is this, that each layer adds its own header, and that phenomenon is called encapsulation. So encapsulation in this example is performed at the client, which is a web browser, and at the web server, the decapsulation process or de-encapsulation process happens. That was for the first one, between this request. And then the server prepared a packet, a message, a response, and that response was encapsulated at the server end and decapsulated at the client end. Okay, if you have any question, definitely I will be happy to respond. Amran Khatak, Umama, Muazzam, Nurul Haq. Do people have any question about this? Or you have a solid understanding of this, because now you have not only read it, but you have looked at by using the packet tracer. And in the packet tracer, if you remember, we use the simulation mode to look at each step, to look at each event. That was important. So there is something in the chat, and the chat is saying Muazzam, and Umar is saying no sir, no question. That's great. So now yesterday we started, that was something which you did last week. This week, which means yesterday, Wednesday, we started with the physical layer. And as I said, that when we finish the physical layer, we'll go to the data link layer. When we finish the data link layer, we will look at the network layer and so on. So the basic objective of each layer is what function it performs, it performs, and which protocol in this layer are responsible to give you this function. That is the basic goal, right? So in the physical layer, we yesterday looked at the physical layer. I can say simply that there are two very, very basic functionalities. One is the encoding and decoding. Encoding and decoding function is performed by the physical layer. And number two, and this encoding and decoding is performed looking at the medium, the technology, medium or technology. Maybe optical technology is required, technology
or maybe the copper medium, or maybe the air medium, depends. So it means we yesterday looked at that this medium can be a guided medium or can be an unguided medium. Unguided medium. Is it clear, Kamran? Okay, if it's clear, it's good. Then we move further. And today, as you can see, that we want to study the copper cabling. So as I said that we have this guided medium. If you look at the guided medium, it can be copper medium or it can be the fiber medium, optical fiber, right? So, oh, yes, there is something in the chat. No, sir, no question. Kamran, yes. Do you have any question? Or it is clear to you, Kamran? It seems to me that you want to say that you don't have any question and everything is clear. Am I right? Okay, no question. I see. So we have Junaid, good. Kamran, Kainat is here, very nice. Raiva is here, excellent. Muazzam, Nasir, good. Nurul Haq, Mama, and we have Sumaya and Shazib, and we have the Schrodinger as well. I don't know who is this gentleman. Anyhow, so looking at here, ladies and gentlemen, you have this copper medium can be, as I said yesterday, it can be twisted pair, and definitely I have to answer why we do the twisting. And mostly we are using the twisted pair if we are using the copper. And then the next one is the fiber. Sorry, not fiber, is the coaxial, right? And if we look at the this one, between the copper, it means the today's topic is basically the copper medium. And here you can look at that this twisted pair can be unshielded twisted pair, mostly we use, and it can be shielded twisted pair, ST, UTP, ST. Where we use the UTP, where we use the STP, important question to answer. And then we should look at the structure. Definitely we look at the structure of the twisted pair or of the coaxial cable. And then we should look at the coaxial cable, which can be a thin net cable, thin net, or maybe a thick net. So these are something related to the copper. And when we finish, inshallah, the copper, then we will go to the fiber, which is very, very important nowadays, because everywhere we have the copper. Even copper has reached to your home. आपके घरों तक भी फाइबर, इसलिए हम कहते हैं फाइबर टू द होम. फाइबर to the home. FTTH. इससे पहले mostly it was FTTC, fiber to the curb, right? Okay. Although fiber is within the cities, between the cities, between the countries, between the continents, everything. That's the reason it has become very important medium of communication nowadays. Because the major good point is that it provides a very high bandwidth. It provides very high speed. So that is the good point about this fiber. But today, initially, we want to talk about the twisted pair, right? Okay. So UTP, first of all, the question should be why we do the twisting. दो cable अगर हम लेते हैं, so we can take a cable like this. That is simple. No twisting is there. Straight. Two wires, one is positive, one is negative, for example. Why we are doing this twisting? Why we are doing this twisting? That is important. Why we are doing this twisting? And definitely, probably last week, आपने ये केबल बनाई भी है, UTP केबल आपने खुद बनाई भी है, तो आपने देखा कि वाकई it has such twisting.
Ladies and gentlemen, the reason behind this twisting is the following. It reduces the crosstalk. It reduces the crosstalk. There is something in the chat and saying yes. Can you tell me your name, sure, so that I may not disturb from external noise? Oh, Rafi. Okay. Right. So very nice, Sumaya. To cancel the crosstalk effect. और जिसने कहा एक्सटर्नल नॉइज है, मौजम, नो, एक्सटर्नल नॉइज को क्रॉसटॉक खत्म नहीं करता, ट्विस्टिंग खत्म नहीं करता। ट्विस्टिंग जो है वो जो क्रॉसटॉक है इंटरनल फिनोमेना है, यानी कि एक वायर जो प्रोड्यूस करती है induced EMF, that induced EMF is affecting the other one. That is it. So to cancel the effect of these, we use this twisting. External के लिए you use the shields. मतलब देखिए यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि here we have a shield, which is not here. This shielding is used for external problems को डील ये कर रहा है। ये इसका एक वायर दूसरे वायर में जो ईएमएफ इंड्यूस करती है उसको निगेट करना, उसको कम करना इज द जॉब ऑफ द ट्विस्टिंग। यस सर, ओके, नाइस। तो हम बात ये कर रहे हैं कि जब दो वायर्स का ट्विस्टिंग हमने इसलिए की, और जितना ये ट्विस्टिंग ज्यादा करेंगे उतना ही ज्यादा बेहतर केबल आपके सामने आए। इसी वजह से हमने कहा है कि ये ट्विस्टिंग जो हमारी ट्विस्टेड पेयर वायर्स हैं इनकी मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं। मिसाल के तौर पे कैटेगरी 3, कैटेगरी 5, कैटेगरी 5E, कैटेगरी 6, कैटेगरी 6E, 7, 8 एंड सो ऑन। इनमें किस चीज का फर्क है? मोस्टली दिस ट्विस्ट लेंथ number 1, and maybe the diameter of to some extent, and purity of the copper. They are the important factor, but the most important one is the twist time. Here, ladies and gentlemen, और इनमें क्या फायदा है इन कैटेगरीज में ओवरऑल, as far as the user is concerned, more speed, more capacity, more speed. For example, this 5 was capable to give 100 megabit per second, but 6 is for, sorry, not 10, 100 megabit per second. Here it is 1 gigabit per second. Here probably it is 10 gigabit per second, and so on. Gigabits, bits per second, not bytes, bits per second. मेरी बात समझ आ रही है? और मामा, is it clear? Shabash. Is there any question? Why we are doing the twisting? Is there a Kamran? Is it clear to you? Although Kamran जो है, he is from the computer science background. Crosstalk कहते किसे हैं? क्योंकि ये क्वेश्चन आपने नहीं पूछा। Crosstalk कहते किसे हैं? तो फिर उसको रिड्यूस करना इंपॉर्टेंट है। तो स्पेशली फॉर यू कामरान एंड नूरनाक, आप लोग ने नहीं पढ़ा होगा प्रॉब्ली। क्रॉसटॉक ये होता है कि अगर दो हमारे पास वायर्स हैं, जैसे आपको ये नजर आ रहा है, और वापस मैं आ जाऊं अपनी स्क्रीन पे, तो आपको नजर आ रहा है कि एक इफेक्ट है जो कि आपने एफएससी में पढ़ा है, जिसको आपने फ्रेडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के उससे पढ़ा था, कि अगर एक वायर में या एक सर्किट में आप ईएमएफ दी, यानी वोल्टेज दी सिंपल, और ये वोल्टेज वेरी करे, यानी वेरिएबल वोल्टेज आप यहां दें, तो साथ में सेकेंडरी सर्किट में खुद ब खुद एक वोल्टेज जनरेट हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फ्लक्स जनरेट होता है। ये फ्लक्स इसको लिंक करता है, ये फ्लक्स इसको लिंक करता है, जिसकी वजह से यहाँ पे एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है, जिसका जस्ट डायरेक्शन, अगर ये पॉजिटिव टू नेगेटिव है, यानी डायरेक्शन ऑफ करंट ये है,
तो यहाँ पे डायरेक्शन करंट इसके अपोजिट होता है, नेगेटिव के सामने पॉजिटिव और पॉजिटिव के सामने नेगेटिव। तो यहाँ पे एक ईएमएफ जनरेट हो गया। इसी तरह अगर आप ये कहें कि ये एक सर्किट है, इसमें कोई करंट, चेंजिंग करंट, लाजमी तौर पे आपका सिग्नल है, कभी ज्यादा कभी कम, इट इज नॉट ए डीसी, it is not fixed, so definitely it is varying. The important thing is that here we have in this circuit we have or pair, we have a varying current, varying voltage, and this voltage will induce an EMF in the second one, जिस पे मैंने 2 लिखा है। ये 1 की वजह से 2 में वोल्टेज इंड्यूस हुई। अब हम चाहते हैं कि ये वोल्टेज कम से कम हो, क्योंकि ये लाजमी तौर पे यहाँ की वोल्टेज को अफेक्ट करेगी। लाजमी तौर पे जो सिग्नल यहां जा रहा है वो इसके लिए कोई अच्छा सिग्नल नहीं है, क्योंकि लेट करें यहाँ पे आपका, चलिए हम ये जूम कर लें कि यहाँ पे आपका वॉइस जा रहा है, यहाँ पे कोई और सिग्नल जा रहा है। लाजमी तौर पे दीज 2 सिग्नल्स, हम चाहते हैं एक सिग्नल दूसरे को इफेक्ट ना करे, और स्पेशली आप लोगों ने अपने टेलीफोन नेटवर्क्स में ये इफेक्ट बड़ा ज्यादा फील किया होगा कि जब बारिश वगैरह हो जाती है तो आपको अपने, आप फोन पे बात करते हैं तो आपको अपने हमसाये की आवाज आना शुरू हो जाती है। दैट इज मतलब कि उसकी के पेयर से आपके पेयर में वोल्टेज इंड्यूस होती है, जिसकी वजह से आपको एक नॉइंग इफेक्ट फील होता है। तो इसको कहते हैं, इस अमल को कहते हैं क्रॉस टॉक। तो यानी कि एक वोल्टेज अगर ये एक वोल्टेज है तो एक दूसरी वोल्टेज यहाँ पे आ जाती है जो कि इसको इफेक्ट करती है। लाजमी तौर पे वो इंटरफेरेंस है इसके लिए। तो इस इंटरफेरेंस को रिड्यूस करने का तरीका क्या है कि हम ये करेंगे, ट्विस्टिंग करें। तो ट्विस्टिंग का लेंथ जितना छोटा होगा, यानी कि अगर एक देखें ना आप, यहाँ के डायरेक्शन अपोजिट है, तो अगर ये लेंथ छोटा होगा तो जो ही यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ, इसके अपोजिट टाइम में एक मुख्तलिफ डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा, एंड दे विल कैंसिल ईच अदर इफेक्ट। इस बात समझ आ रही है? कमरान, नूरुल हक, उमामा, कायनात, seems okay. Jen, nice. There is something in the chat as well, and the chat is saying Kainat yes, Laiba yes, Nurullah clear, very nice. Kamran is also clear, so everyone is good. So we can continue. So basically इस पर्पस के लिए जो मैंने अपनी स्लाइड पे लिखा था शुरू में, we use the unshielded twisted pair, इसके साथ ये जो U लगा हुआ है अनशील्डेड के लिए, इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है लेडीज एंड जेंटलमैन, इसका मतलब ये है क्लियर के, सो इसका मकसद ये है कि आप ये देख सकते हैं इन दोनों केबल्स को अगर आप थोड़ा सा कंपेयर करें तो यहाँ पे ये आउटर प्लास्टिक शीट है, यहाँ पे आउटर प्लास्टिक शीट आपको नजर आ रही है, लेकिन इसके अंदर फिर जैसे 4 वायर्स, 4 पेयर्स ओपनली पड़े हुए, जबकि यहाँ पे ये पेयर्स एक और शील्ड के अंदर बंद किए गए हैं। क्यों ये शील्ड इंपॉर्टेंट है? कि अगर कोई वायर से रेडियो फ्रिक्वेंसी इंटरफेरेंस हो या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस हो, तो ये आप कहेंगे वायर से कहां से आएगी? अभी एक्सप्लेन कर देता हूं। मिसाल के तौर पे ये कि आपका वहां पे कंप्यूटर नेटवर्क है, लोकल एरिया नेटवर्क है, और यहाँ पे कोई जनरेटर लगा हुआ है, कोई ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, कोई मोटर लगी हुई है, तो ये डेफिनेटली एक ईएमएफ जनरेट करेंगे। और ये ईएमएफ अगर यहाँ अंदर आके इन केबल्स को डिस्टर्ब कर, लाजमी तौर पे इन केबल्स को डिस्टर्ब करती है, इन ईएमएफ या फ्लक्स, इसका जो फ्लक्स है वो इसको डिस्टर्ब करता है, तो ये कोई बेहतर हमारे लिए नहीं है, हमारा सिग्नल उससे करप्ट हो जाएगा। इस चीज से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक एक्स्ट्रा शीट यहाँ पे रेड कलर में शो करता हूं ताकि आपको नजर आए, यहाँ पे आप एक एक्स्ट्रा शीट आपको ये नजर आ रही है। तो ये एक्स्ट्रा शीट आप इसलिए लगाते हैं कि जो बाहर की रेडियो फ्रिक्वेंसी या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस है, या ये भी हो सकता है, ये तो हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस की एग्जांपल, रेडियो फ्रिक्वेंसी की एग्जांपल ये हो सकती है कि हो सकता है आपका ये सिस्टम जो है किसी अर्थ स्टेशन पे लगा हुआ है जहां पे बहुत से एंटेनास हैं, वो एंटेनास से सिग्नल आ भी रहे होते हैं, जा भी रहे होते हैं, तो वहां पे कौन से सिग्नल होंगे? रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल्स है। तो ये रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल भी यहाँ, और आपके इसमें कौन सा सिग्नल जा रहा है? दैट इज आल्सो एट द रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल्स, हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स।
तो दे कैन अगेन इंटरफेयर विद वन अनदर। तो इससे बचने के लिए हम फिर इंस्टेड ऑफ द अनशील्डेड हम शील्डेड ट्विस्टेड पेयर इस्तेमाल करते हैं। थोड़ी सी महंगी होती है, लेकिन लाजमी तौर पे सिग्नल की स्ट्रेंथ, सिग्नल की क्वालिटी से हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट है, इसलिए ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दैट इज द टू मीडियम्स विच वी मोस्टली यूज फॉर ईथरनेट कम्युनिकेशन। ईथरनेट कम्युनिकेशन, अगर कल आपको याद हो तो मैंने जो आपको एनआईसी कार्ड दिखा रहा था बार बार, उस एनआईसी कार्ड में दो इंटरफेसेस थी, एक RJ45 के लिए और RJ45 इसी इथरनेट के इसी केबल को इस्तेमाल करता है, इधर शील्डेड और अनशील्ड, मोस्टली अनशील्ड। ओके, उसमें एक और भी थी इंटरफेस, जो पुराना कार्ड था, दैट वाज फॉर द कोएक्सियल, कोएक्स। तो उसके लिए ये कोएक्सियल केबल आपको दिखाई दे रही है। although अब हमारे कंप्यूटर नेटवर्क्स में कोएक्सियल केबल का इस्तेमाल कम हो गया है। क्यों कम हो गया है? आपको पता है कि जो शख्स भी अपनी जिंदगी में अपने इंप्रूवमेंट पे तवज्जो नहीं देता, अपनी अच्छाई पे तवज्जो नहीं देता, वो उसकी इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती है। तो यहाँ भी ये था कि ये केबल तो स्टार्ट हुई 10 मेगाबिट पर सेकंड से, 10 से इसने जंप की 100 मेगाबिट पर सेकंड पे, यहां से इसने जंप की 1 गीग के ऊपर, एंड देन इट वेंट टू 10 गीग। तो ये लाजमी तौर पे इंप्रूवमेंट है कि जी स्पीड ज्यादा से ज्यादा कर रही है अपनी, जबकि ये 100 मेगाबिट पर सेकंड पे स्टक हो गई, रुक गई। तो लाजमी तौर पे अब जब हमारे पास ये महंगी भी है, इससे सस्ती केबल हमें ज्यादा बेहतर क्वालिटी देती है, ज्यादा स्पीड देती है, कैपेसिटी देती है, तो यू अंडरस्टैंड व्हाई नॉट टू यूज। ठीक है, लेकिन जी झटमन जी रफी सर ये कोएक्सियल केबल किस लिए यूज होता था कंप्यूटर में? जी बिल्कुल, कोएक्सियल केबल पहले कोएक्सियल केबल हम यही, जैसे कल आपने देखा था, अगर नहीं देखा तो जरूर था, कल मैंने आपको एक कार्ड बताया था जो कि एनआईसी कार्ड था ईथरनेट के लिए। तो उसमें आपने देखा था कि दो इंटरफेसेस का मतलब है कि वहां पे आप चाहें तो RJ45 लगा लें और चाहें तो कोएक्सियल, और कोएक्सियल में मैंने आपको कनेक्टर्स भी दिखाए थे, ठीक है ना, याद आ रहा है? तो ये आपका एक तरीके यूज तो ये था कि इस पर्पस के लिए आप इसको इस्तेमाल करें। लेकिन आजकल के दौर में आपकी कोएक्सियल केबल मोस्टली केबल टीवी के लिए, केबल नेटवर्क के लिए इस्तेमाल हो। इसके अलावा केबल नेटवर्क के अलावा जो आपके अर्थ स्टेशन है, वहां पे आपके एंटेना से आपके रिसीवर तक, एंटेना से रिसीवर तक आपका जो सिग्नल आता है, उसमें भी ये कोएक्सियल केबल इस्तेमाल होती है। जी रहे। तो सर मैं कह रहा हूँ कि कंप्यूटर में किस लिए होते थे वो, तो ये तो अभी तो टीवीज में, जैसे आपने पूछा कि कंप्यूटर में किस पर्पस के लिए इस्तेमाल होती थी, जेंटलमैन, ये कंप्यूटर में उसी पर्पस के लिए इस्तेमाल होती थी जो कि आज आप RJ45 के लिए, आपने पिछले वीक एक्सपेरिमेंट किया था ना, जिसमें आपने एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा शिफ्ट किया था, यानी लोकल एयर नेटवर्क बनाया था। तो आप कोएक्सियल से भी ये लोकल एयर नेटवर्क बना सकते थे। इसका एक ही मेजर एडवांटेज था, और वो एडवांटेज ये था कि कॉपर केबल, ये जो आपको ट्विस्टेड पेयर नजर आ रही है, आज भी मैक्सिमम डिस्टेंस 100 मीटर तक ले जा सकते हैं। यानी अगर दो डिवाइसेस 100 मीटर अपार्ट हैं तो यू कैन यूज विद दिस। कोएक्सियल का फायदा ये था कि ये, मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया कि इसमें दो फ्लेवर्स हैं, एक थिन नेट और एक थिक नेट। थिन नेट ये बगैर किसी रिपीटर के 200 मीटर तक जा सकती है, और ये बगैर किसी रिपीटर के 500 मीटर तक जा सकती है, जबकि ये यूटीपी और एसटीपी ये आज भी 100 मीटर तक लेकर जा। और जहां पे आपका अगर डिस्टेंस ज्यादा हो जाता है तो फिर आप कोएक्सियल को ऑप्ट करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। मिसाल इसकी ये देता हूं, जब शुरू में अराउंड 2000 में इंटरनेट वाज न्यू इन पाकिस्तान, तो आपके डिपार्टमेंट में आज भी, हमने वहां से उतार दिया है, तकरीबन 1 साल पहले तक भी एक कोएक्सियल केबल पड़ी हुई थी, जो आपके लैब 1 की पहली खिड़की है, वहां पे एक कोएक्सियल केबल पड़ी हुई थी। वो कोएक्सियल केबल मैंने लगाई थी, किस पर्पस के लिए? कि हमारे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में उस वक्त इंटरनेट मौजूद था, तो इंटरनेट को यहां से यहां तक लाने के लिए डिस्टेंस जो था 100 मीटर से ज्यादा था, इसलिए हम यहाँ पे यूटीपी नहीं इस्तेमाल कर सकते थे। तो उस वक्त मैंने कोएक्सियल केबल खरीद के, मुझे तकरीबन 200 मीटर का फासला है, इट वर्क। क्या रफी को जवाब मिला? यस सर, क्लियर। नाइस।
तो हम बात कर रहे हैं अबाउट दी, हम बात कर रहे हैं अबाउट या हम बात कर रहे हैं अबाउट दी ट्विस्टेड पेयर, और हम बात कर रहे हैं अबाउट दी कोएक्सियल केबल, जो कि दो केबल्स हैं विच आर यूज्ड फॉर मेकिंग लोकल एरिया नेटवर्क्स, बिकॉज हम नेटवर्क के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं। व्हेन वी वांट टू यूज दी, व्हेन वी वांट टू यूज दी कॉपर, copper as a twisted pair, copper as a coaxial cable. So both can be used for making local area networks. Okay. अगर ये हमारी बात क्लियर हो गई है तो आपने देखा कि इसमें जो आपकी अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर होती है उसमें एक बाहर आपका वो आउटर जैकेट, ये आपको नजर आ रहा है आउटर जैकेट, या कोटिंग कह लें, ये आपकी आउटर जैकेट है, और उसके अंदर क्योंकि ये अनशील्डेड है, क्योंकि ये अनशील्डेड है इसलिए इसके अंदर और कुछ भी नहीं, डायरेक्ट आपके चार पेयर्स पड़े हुए। तो ये यहाँ पे इसने की फीचर में बताया कि आउटर जैकेट क्या करती है, प्रोटेक्ट द कॉपर फ्रॉम फिजिकल डैमेज, ये बाहर से कोई डैमेज अगर हो तो कम से कम ये उसको प्रोटेक्ट करेगी। उसके बाद ट्विस्टिंग पेयर्स प्रोटेक्ट द सिग्नल फ्रॉम इंटरफेरेंस। कौन सी इंटरफेरेंस? क्रॉस टॉक, अभी हमने बात की है, क्रॉस टॉक मैंने कहा कि ये इंटरफेरेंस है। और फिर कलर कोडिंग क्यों की गई है, ठीक है ना, आपको नजर आ रहा है कि ये ऑरेंज कलर है, ये ग्रीन कलर है, ये ब्लू कलर है, ये ब्लैक कलर है फॉर एग्जांपल, इसलिए कि किसी में सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा होता है, किसी में रिसीव हो रहा होता है, क्योंकि दिस केबल इज यूज्ड फॉर ए फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन, फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। अगर इसमें आप सिर्फ दो पेयर इस्तेमाल करें तो इट माइट बी यूज ओनली फॉर ट्रांस और रिसीव, यानी ओनली वन वन ऑप्शन आप ले सकते हैं। तो इसमें से कुछ दो पेयर जो है वो ट्रांस के लिए है, दो रिसीव के लिए है। और कलर कोडिंग इसलिए है कि पता हो कि अगर मिसाल के तौर पे अगर ये दो ट्रांस के लिए है तो इधर ये ट्रांस के लिए, तो दूसरे एंड पे वो रिसीव के लिए इस्तेमाल हो जाएंगे। तो ये कलर कोडेड प्लास्टिक इंसुलेशन electrically isolate the wires from each other and identify, that is important, identify each pair. There everyone? Okay, अगर ये क्लियर है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके मामा, थैंक यू फॉर रिस्पॉन्स। तो हम बात कर रहे हैं कि अगर आपके वायर से, जिसे मैंने अभी कहा, कोई रेडियो फ्रीक्वेंसी इंटरफेरेंस या कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस का खतरा है तो देन यू विल बी यूजिंग शील्डिंग। तो अब आपको नजर आ रहा है कि आपके की जो पहले वायर प्लास्टिक की कोटिंग थी जिसको आपने फिजिकल डैमेज से बचाने के लिए इस्तेमाल किया वो यहाँ मौजूद है। इसके बाद बाज केसेस में एक ब्रेड या फॉइल इस्तेमाल की जाती है जो कि एक्सटर्नल इन इंटरफेरेंसेस से हमें बचाती है, अंदर की वायर्स प्रोटेक्टेड रहती। और उसके बाद फॉइल शील्ड फॉर ईच पेयर, लाजमी नहीं कि हर एक के लिए अलग अलग हो सकता है, एक्सपेंसिव वायर्स में होता है लेकिन लाजमी नहीं, हो सकता है कि ये 1 हो, ये 2 हो और ये 3 हो, लेकिन एक्सपेंसिव वन में हर एक पेयर को अलग अलग फॉइल में बंद कर दिया जाता है ताकि आपको फर्दर प्रोटेक्शन और ईएमआई और आरएफआई से मिल जाए। और कलर कोडिंग का वही मकसद है कि आइडेंटिफाई करना है कि अगर यहाँ पे ब्लू है तो दूसरे एंड पे ब्लू होगा, तो आपको पता चलेगा कि इधर से सिग्नल हमने ब्लू में इंटर किया है तो यहाँ के ब्लू से निकल रहा है, अगर ब्लू से निकल रहा है तो यहाँ पे ट्रांसमीटर लगा होगा, यहाँ पे उसका रिसीवर होगा जो उसको रिसीव करे। So there is something in the chat and the chat is saying yes, nice. Okay, so ladies and gentlemen, then comes the coaxial key, जिसका मैंने आपको बताया कि हर वायर में पेयर होना जरूरी है, कम्युनिकेशन में, इलेक्ट्रिकल में, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, हर जगह जब आप सिग्नल को मूव करना है तो यू अंडरस्टैंड कि देयर शुड बी अ पेयर। तो यहाँ पे पेयर कौन बनाएगा? ये दो बनाएंगे जिनको मैंने मार्क किया। तो यहाँ पे 4, 2 and 4। तो आप इसका मतलब अगर आप उसको पढ़ना चाहें तो आपको नजर क्या आ रहा है? सबसे पहले आपका एक कॉपर का कंडक्टर है, कॉपर का 4 नंबर पे जो बता रहा हूं, कॉपर का कंडक्टर। फिर उसके ऊपर क्या है? एक प्लास्टिक इंसुलेशन है, एक प्लास्टिक इंसुलेशन है। और फिर प्लास्टिक इंसुलेशन के बाद नंबर 2 पे क्या है? एक कॉपर का, अगेन कॉपर, ये भी कॉपर, 4 भी कॉपर, 2 भी कॉपर, यानी दूसरा पेयर का दूसरा हिस्सा है। तो दिस इज दी मेटालिक कॉपर, कॉपर मेटालिक ही होती है, कॉपर, कॉपर
ब्रैड है, कॉपर ब्रैड है। तो ये दो काम करता है। एक तो इसलिए आप पूछ सकेंगे कि भाई ये 200 मीटर तक क्यों ले जा सकता है या 500 मीटर तक क्यों ले जा सकता है, क्योंकि एक्सटर्नल इंटरफेरेंस को ये ब्रैड, जिस तरह की हमने अभी पढ़ा है शील्डेड ट्विस्टेड में कि वो एक्सटर्नल इंटरफेरेंस को रोकता है, ये ब्रैड एक तरफ से तो एक्सटर्नल इंटरफेरेंस को रोकता है और दूसरे एंड पे ये इसके लिए एक्ट करता है एज ए सेकंड पेयर। और वन पे तो आपको पता है जैकेट है जस्ट प्रोटेक्शन के लिए। तो ये चार चीजें मिलके क्या बनाती हैं, कोएक्सियल केबल। और इसके अपने कनेक्टर्स होते हैं। जैसे मैंने कल आपको बीएनसी कनेक्टर नहीं, मैंने आपको टी कनेक्टर कल दिखाया था। मैंने आपको कल टी कनेक्टर दिखाया था। लेकिन अगर आप टीवी के आपके घर में मोबाइल ये है केबल टीवी, तो आपने देखा होगा कि आपके टीवी पे इस किस्म का एक कनेक्टर जाके कनेक्ट होता है, तो इसको कहते हैं बीएनसी कनेक्टर। तो मुख्तलिफ किस्म के कनेक्टर्स हैं, जैसे बीएनसी कनेक्टर, एन कनेक्टर, एफ कनेक्टर्स। दीज कनेक्टर्स आर यूज्ड एट द एंड ऑफ द कोएक्सियल। बात को तो आप क्वेश्चन करते हैं कि जी मुख्तलिफ क्यों, क्योंकि मुख्तलिफ स्टैंडर्ड्स हैं। तो डिपेंड करता है कि अगर आपके डिवाइस में जो भी आपका डिवाइस है, मिसाल के तौर पे आपका रिसीवर है, आपका सैटेलाइट रिसीवर है, सैटेलाइट रिसीवर में अगर बीएनसी के लिए है तो आप बीएनसी कनेक्टर इस्तेमाल करेंगे, एन के लिए है एन इस्तेमाल करेंगे। तो मुख्तलिफ कनेक्टर्स हैं जिनके जरिए आप इस्तेमाल कर सकते। क्लियर? तो मैंने अभी आपको बताया कि कोएक्सियल आप ज्यादातर जहां पे वायरलेस इंस्टॉलेशन हैं, जैसे अर्थ स्टेशन की मैंने आपको एग्जांपल दी, जैसे पाकिस्तान में दो अर्थ स्टेशन हैं, एक इस्लामाबाद में और एक कराची में, जो कि आपके सैटेलाइट्स के साथ, ट्रांसपॉन्डर्स के साथ बात करता है। तो अगर ये आपका ट्रांसपॉन्डर है तो ये जमीन पे किसी डिवाइस के साथ बात करता है। तो ये इसको हम कहते हैं अर्थ स्टेशन। अर्थ स्टेशन। चाहिए तो ये था कि आज हमारे फर्स्ट सेमेस्टर वाले विजिट के लिए, टूर के लिए गए हैं, तो उनको ऐसी जगहों पे, उनको सिर्फ लेक व्यू पार्क ले जाना फायदा नहीं है, उनको सिर्फ शाह फैसल मॉस्क ले जाना को बेहतर इतना ऑप्शन नहीं है। बेहतर ये है कि उनको इस किस्म के स्टेशन का विजिट कराएं, उनको डेटा सेंटर्स का विजिट कराएं, ताकि उनको फील हो कि दुनिया किधर जा रही है और मैं कहाँ पे। एनी तो यहाँ पे स्टेशन पे आपके कोएक्सियल केबल्स इस्तेमाल। इसके अलावा दी इंटरनल इंस्टॉलेशन, जहां पे कस्टमर प्रीमिसेस वायरिंग वगैरह में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर कंप्यूटर कम्युनिकेशन। ठीक है। इसके बाद यूटीपी की वही बातें हैं अभी तो करना चाहता है जो मैंने आपसे पहले कर ली। यूटीपी केबलिंग कहाँ पे इस्तेमाल होती है, आपको नजर आ रहा है कि जस्ट एक प्लास्टिक की, तो आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पे कि यहाँ पे उसी तरह प्लास्टिक की कोटिंग और अंदर चार पेयर्स, और ये वायर्स आपने देखी हुई। और इसका पर बता दिया कि क्यों हम ये ट्विस्टिंग करते हैं। हम इसके करते हैं कि कैंसिलेशन करना चाहते हैं हम, जो ईएमएफ जनरेट होता है एक पेयर का दूसरे पेयर को अफेक्ट करता है एंड एक्ट लाइक ए इंटरफेरेंस। फिर हमने बात की कि कौन से स्टैंडर्ड्स, मैंने अभी आपको बताया भी इसके मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं। और आप देख रहे हैं कैटेगरीज में जो मेजर डिफरेंस है दैट इज दी ट्विस्ट लेंथ। ठीक है। तो ट्विस्ट लेंथ ज्यादा जितना करते जाते हैं, छोटा करते जाते हैं लेंथ को, उतनी बेहतर केबल। तो यही बात है आपको बता रहा है कि कैट 3 भी है, कैट 5 भी है, कैट 5E भी है, 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है। तो दे आर मुख्तलिफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ यूटीपी। और अगर आप यहाँ से इसको देखना भी चाहें, अगर आप यहाँ से इसको देखना भी चाहें तो आई कैन शो यू दी कैटेगरीज। And you can see here, ladies and gentlemen, in a minute, that we have the different categories, like here category 3, category 8, category 6, 4, blah, blah. 1, 2, these are the different categories which are used for. और अगर मैं इसको इमेज में जाके दिखा दूं, images में, तो probably more effective. Yes, it is more effective. So you can see here that different
categories, major difference is the speed. मिसाल तो पे कैट 3 10 मेगाबिट पर सेकंड, कैट 4 16 मेगाबिट पर सेकंड। 4 इसलिए ज्यादा काम नहीं किया इसने, ये दुनिया में नहीं है वो इतना इफेक्ट आया, क्योंकि 10 से 16 वाज नॉट बिग। 10 से 100 जब अवेलेबल था तो कैट 4 नेवर ग्रैब द मार्केट। ये देखें कैट 5 के बाद कैट 5E 6 6E 7 सब में जो चीज चेंज हो रही है, दैट इज द डेटा रेट। 1 4 10 16 100 1 gig 10 gig 10 gig 10, और distance वही है 100 मीटर 100 मीटर 100 मीटर, and all of them are the TP crystal pairs and used for different purposes, used for different purposes। मिसाल के तौर पे लाजमी तौर पे 1 megabit per second was good for the telephone networks, लेकिन जब हमने इंटरनेट की तरफ आए तो it started with the 5 category 5 and so on। Is it clear, ladies and gentlemen? चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, क्या मैं समझा सकता, पूरा हो गया? नाइस। तो हमने यहाँ पे इस स्टैंडर्ड की भी बात की है, 568 EIA TIA 56A एंड B, 568A और 568B। हमने इस पे केबलिंग भी खुद तैयार की है। तो जो इंपॉर्टेंट चीज है, केबल टाइप, केबल लेंथ, हमने भी लेंथ की बात भी की, कनेक्टर्स कौन से इस्तेमाल होते हैं। अगर ये स्पेशली टर्मिनेशन जो थी दैट वाज इंपॉर्टेंट इन दी बस टोपोलॉजी, वहां पे इस पर बात कर लेंगे। टेस्टिंग भी हमने इसकी की कि भाई स्ट्रेट केबल हो तो वो कैसे, क्रॉस केबल हो, शॉर्ट केबल हो, कनेक्टेड है नहीं है, ऑल वी डिड विद बाय यूजिंग द केबल टेस्टर, यूज द केबल टेस्टर। क्लियर? तो यहाँ पे कनेक्टर्स की बात हो गई। तो आपने देखा तो एक तरफ आपके ये कनेक्टर्स लगेंगे जो कि RJ45, ये लिखा हुआ भी RJ45 कनेक्टर। तो मैंने आपको कहा भी था कि जब आप केबल बनाएं तो इस तरह की बनानी है, जिसको कहते हैं प्रॉपरली टर्मिनेटेड यूटीपी केबल। इस तरह की नहीं बनानी। अगर आपको एग्जाम में या इवन फील्ड में आप काम कर रहे हो तो आपने इस किस्म की केबल को नहीं वो करना जी, ये ठीक है। तो एक तरफ तो ये हो गया कनेक्टर, लाजमी तौर पर ये कनेक्टर जहां लगता है उसको कहते हैं सॉकेट। उसको क्या कहते हैं? सॉकेट। जैसे ये आपके मिसाल के तौर पे लैपटॉप है, जरा गौर से देखो लैपटॉप में तो आपको इस किस्म का आईओ नजर आएगा। ये आईओ को क्या कहते हैं? सॉकेट। इसी तरह ये सॉकेट हमने यहाँ पर भी दिखाया है। ये सॉकेट जो आपने अपनी लैब, स्पेशली जो मेरे कंप्यूटर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, कंप्यूटर सिस्टम के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने लैब 1 में देखा हुआ है। इवन आपके इसमें भी, सिस्को लैब में भी, जब आप एग्जाम से वापस होकर आए, हर टेबल के नीचे इस किस्म का सॉकेट लगा हुआ है जहां पे आप इस किस्म की केबल को टर्मिनेट कर सकते हैं। तो दीज आर दी सॉकेट्स एंड दीज आर दी कनेक्टर्स। मेरी बात समझ आ रही? वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको पता है कि स्ट्रेट थ्रू केबल किस लिए इस्तेमाल होती है और आपको पता है कि क्रॉस केबल किस लिए इस्तेमाल होती है। यही वो बता रहा है कि आपके पास एक तरफ स्ट्रेट केबल है, एक तरफ क्रॉस केबल है, एक तरफ कंसोल केबल भी आपने देखी है, आपने इस्तेमाल की है कंसोल केबल, ठीक है ना। तो इसी की बात यहाँ पे वो करना चाहता है कि जनाब अगर आपकी स्ट्रेट थ्रू केबल है तो बोथ एंड्स आप या तो उसके बनाएंगे, अगर बोथ एंड या तो ए के बनाएंगे या बी स्टैंडर्ड के बनाएंगे। और किस लिए इस्तेमाल होता है? होस्ट को डिवाइसेस के साथ, नेटवर्क डिवाइसेस के साथ, जैसे स्विचेस हैं, राउटर्स हैं, इनके साथ कनेक्ट करने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर होस्ट टू होस्ट है, स्विच टू स्विच है, राउटर टू राउटर है, यानी सेम डिवाइसेस हैं, तो फिर आप एक एंड ए से बनाएंगे और दूसरा एंड बी से बनाएंगे। तो आपने करके देखा है, इसकी इस पे कोई ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा आपने सिर्फ का ये कंसोल केबल, जिसको ये रोल ओवर केबल कह रहा है, ये भी आपने देखी है जो कि प्रोप्राइटरी है, जैसे होस्ट सीरियल पोर्ट, रूटर्स और स्विच कंसोल पोर्ट्स यूजिंग एन अडेप्टर। तो हमने ये केबल भी आपने देखी हुई है। एक और टर्म आपके साथ बाद में डिस्कस करूंगा जिसको कहते हैं ऑटो MDIX। इसमें बाद में बात करूंगा। ये है कि अब हम, लेकिन मैं फिर भी इस बात पे जोर देता हूं कि जैसी केबल आपने इस्तेमाल करना जरूरी है वैसी ही बनाएं। इनकी जहां स्ट्रेट केबल लगती है स्ट्रेट लगाएं, जहां क्रॉस लगती है क्रॉस लगाएं। लेकिन
आजकल के दौर में सिस्टम ने इस किस्म की वो रखी गई है क्वालिटी कि अगर गलत केबल भी लगा दी जाए तो एंड दैट फिनोमेना इज कॉल्ड ऑटो एमटीएक्स। ऑटोमेटिकली वो प्रिडिक्ट कर लेता है कि गलत केबल है और उसको वो प्रॉपरली यूटिलाइज कर। लेकिन कम से कम आपको मैं कभी भी नहीं कहूंगा कि इस फीचर के का फायदा उठाने की कोशिश करें, क्योंकि हो सकता है वो फीचर उस डिवाइस में ना हो तो आपका पूरा नेटवर्क काम नहीं करेगा और आप डिस्टर्ब रहे। इसलिए इंपॉर्टेंट ये है कि प्रॉपर केबल इस्तेमाल कीजिए। इसके बाद हम आते हैं जी आपके पसंदीदा फाइबर ऑप्टिक केबल की, आपके फाइबर ऑप्टिक केबल की। ओए ओके जी, तो रफी हम ऑप्टिकल फाइबर केबल किस लिए, क्योंकि अब जैसे मैंने आपको कहा भी कि अगर आप मिसाल तौर पे अपनी सिस्को लैब में पढ़ते हैं तो आप यहाँ पे एक्सेस रूटर्स लगे हुए हैं। एक्सेस रूटर्स के साथ ही आप देखते हैं कि एक्सेस रूटर के बैक एंड पे आपकी कोएक्स केबल है या सॉरी यूटीपी है। यहाँ पे वायरलेस, यहाँ पे वायरलेस, यहाँ पे यूटीपी। लेकिन ये यूटीपी के अगर हम बैकएंड पे देखें तो जहां पे ये स्विच पे कनेक्ट होती है यहाँ पे ऑप्टिकल कनेक्टिविटी है जो कि हमें कनेक्ट करती है टुवर्ड दी आईएसपी। आईएसपी से मुराद सीएमएस, और फिर सीएमएस जो है वो फिर ऑप्टिकल फाइबर के जरिए कनेक्टेड है हमारे प्रोवाइडर जो कि नया टैप। तो आप देख रहे हैं कि ऑप्टिकल फाइबर हर जगह पे विद इन दी इंटरप्राइजेस एंड दी इंटरप्राइज विद दी कनेक्टिविटी। और आज तो आपके घर से मैं कह रहा हूं कि आपके घर पे भी ये फाइबर पहुंचा हुआ है, जिनके घर में ऑन लगा हुआ है पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क, तो ये ऑप्टिकल नेटवर्क है। जिसका मतलब है कि आपके घर तक उन्होंने किस चीज को ड्रॉप किया हुआ है, ऑप्टिकल फाइबर। और फिर इस डिवाइस के ऊपर आपका जो मॉडेम है उसके ऊपर ऑप्टिकल आता है, जिसका काम ये होता है कि ऑप्टिकल को कन्वर्ट कर दे इलेक्ट्रिकल में, और फिर आगे आप इलेक्ट्रिकल सिग्नल को लेकर अपने राउट अपने डिवाइसेस की तरफ चले जाते हैं। क्लियर जी? कामरान नुरहाक क्लियर हो रहा है कि नहीं? इसलिए इनको कर रहा हूँ कि जूनियर रिपीट कर। ओके उमामा, उमामा हमारा जो टॉपिक है वो है फाइबर ऑप्टिक, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दिया। सवाल ये पैदा होता है कि ये इस्तेमाल भी कहीं होता है कि नहीं। पहली बात तो ये है कि अगर हम इसको पढ़ रहे हैं या कल हम इसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कहीं लगा हुआ है कि अगर हमें कहीं जॉब मिलती है, हम काम करते हैं चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन की है कुछ भी है, तो हमें पता तो हो कि ये चीज कहीं इस्तेमाल हो रही है। मैंने कहा आपको कहा कि पहली एग्जाम्पल मैंने आपको आपके सिस्को की, आपकी यूनिवर्सिटी की कि जनाब आपकी यूनिवर्सिटी में जब आप बैठते हैं तो आप वायरलेसली अपने एक्सेस पॉइंट के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। एक्सेस पॉइंट जो है वो एक स्विच के साथ कनेक्ट हो रहा होता है, तो आपको नजर आ रही होती है कि वहां पे एक यूटीपी केबल जा रही है। लेकिन ये आपको नजर नहीं आ रहा होता कि इस अगले स्विच से सीएमएस तक या सीएमएस से मेटल तक वहां पे कॉपर नहीं है बल्कि फाइबर है। एक एग्जांपल होगी। दूसरी एग्जांपल मैंने आपको ये दी, दूसरी एग्जांपल मैंने आपको ये दी कि चाहे आप नयाटेल के, अगर पिशावर की एग्जांपल लूं, चाहे आप नयाटेल के कस्टमर हैं, चाहे आप स्टॉम फाइबर के हैं, चाहे आप पीटीसीएल के हैं, आपके घर तक ये कंपनीज अब ऑप्टिकल फाइबर लेकर आती हैं। और आपका जो डिवाइस लगा हुआ है जिसको आप कंज्यूमर प्रीमिसेस इक्विपमेंट सीपीई कह सकते हैं, कंज्यूमर प्रीमिसेस इक्विपमेंट, तो इस कंज्यूमर प्रीमिसेस इक्विपमेंट पे, इस कंज्यूमर प्रीमिसेस इक्विपमेंट का काम मेन ये होता है कि जो सिग्नल इलेक्ट्रिकल ऑप्टिकल में आ रहा है उसको इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर। और फिर ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल, जैसा कि चाहे आप इसके आगे फिर कोई एक्सेस रूटर लगा लें, एपी लगा दें, और फिर एपी से आप उसको ब्रॉड अपने जितना आपका रूम है, घर है, वट उसमें पूरे सिग्नल को हासिल कर। अब मेरी बात समझ आई मामला को? Here is the answer. Yes. अब क्वेश्चन ये है उमामा से कि इसकी जरूरत क्यों है, इसकी जरूरत क्यों है मामा, इसकी
जरूरत क्या है आपकी, किसकी, इसकी? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही सवाल, जो मेरा ये नहीं है, आपने सही कहा कि यहाँ पे स्पीड बहुत अवेलेबल है, ऑप्टिकल फाइबर में कैपेसिटी बहुत अवेलेबल है। इवन अगर आप चाहें कल के मुझे 10 गीगाबिट पर सेकंड चाहिए, इसलिए पीटीसीएल अपने पॉन को कहता है जी पॉन। पीटीसीएल अपने पॉन को क्या कहता है, ये मतलब पीटीसीएल नहीं कहता, ये टर्म है जी पॉन। यानी ये ऐसा पॉन है, ऐसा पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क है जो कि आपको गीगाबिट्स भी अगर आपको चाहिए हो तो दे सकते। तो आपने ठीक कहा कि जी, the good point about the optical fiber is from the perspective of the end user, कि उसको हाई स्पीड अगर चाहिए तो मिल सकती है। मिसाल के तौर पे कल आप कोई बिजनेस में इन्वॉल्व हो जाते हैं जहां पे आपको बहुत ज्यादा कस्टमर्स आते हैं, तो लाजमी तौर पे आप फिर 10 मेगाबिट पर सेकंड या 8 मेगाबिट पर सेकंड नहीं, आप चाहेंगे कि जी मेरी स्पीड 1 गीग हो, 2 गीग हो, 10 गीग हो, ताकि मेरे कस्टमर इजिली मेरे साथ कनेक्ट हो सके। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि इस अमल के, जिसको मैंने यहाँ पे एरो लगाया है, ये ऑप्टिकल टू इलेक्ट्रिकल कन्वर्जन का, ओई कन्वर्जन का क्यों करते हैं? यहाँ पे मेरे को पास कोई 8 सेमेस्टर का स्टूडेंट है, उमामा और ये लोग तो कायनात है, कायनात है, लाइबा है। जी लाइबा, कायनात, क्यों हमें ये ओई चाहिए? कोई आइडिया? चैट में हमें जवाब मिल गया, और जवाब है रिपीट क्वेश्चन। क्वेश्चन मेरा ये है मुअज्जम, कि ये जो मैंने बताया कि यहाँ पे हम इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ पे हम इस्तेमाल कर रहे, कलर चेंज करना चाहता हूँ जी, ये जो मैंने ये बॉक्स बनाया, ओ ई अंदर लिखा, ये मैंने दोबारा भी लिखा, जो कि हमारे सीपी यानी कि कंज्यूमर प्रीमिसेस इक्विपमेंट में ये प्रोसेस होता है, क्यों जरूरी है? शाबाश जी। तो हमें चैट में कुछ जवाब आया है। दूल्हा कहता है बिकॉज मे बी डिवाइसेस वर्क ऑन इलेक्ट्रिकल सिग्नल एंड नॉट ऑप्टिकल सिग्नल, एंड वेरी राइट आंसर इज दिस। तो इस क्लास के जूनियर ने जवाब दिया, जो कि ठीक जवाब है, कि हमारे जितने भी डिवाइसेस हैं, मिसाल के आपका लैपटॉप है, आपका स्मार्टफोन है, आपका टैबलेट है, आपका डेस्कटॉप है, आपके सर्वर्स हैं, वर्क स्टेशन हैं, सब के सब इस पे काम करते हैं। वेरी राइट आंसर थी ऑल। और उनका उनका रैंक कौन सी है, उनका प्रोसेसर कौन सा है, उसका मदरबोर्ड क्या समझता है? लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज ऑल इलेक्ट्रिकल। दैट द रीजन, हमें आपके घर तक तो हम ट्रांसमिशन के लिए तो दैट इज द बेस्ट ऑप्शन। लेकिन आज भी हम, हमारी जो लॉजिक है, लॉजिक डिजाइन है, दैट जो आपने डीएलडी पढ़ी, आपने हार्डवेयर डिजाइन पढ़ा, इट्स ऑल rotating around the electrical components. So that's the reason it is must that we should convert before giving it to the devices. We must convert it into electrical. G. Very nice. जी, बात समझ आई? अब जो मैंने पूछा था लाइबा और कायनात से। वेरी नाइस। तो आगे बढ़ते हैं फिर। तो इसलिए ये प्रोसेस करना पड़ता है। लेकिन कल अगर हम इस काबिल हो गए कि हमारे डिवाइसेस ऑप्टिकल पे चले गए, फिर एक नई दुनिया आबाद हो जाए, क्योंकि फिर भी इलेक्ट्रिकल जो है वो बॉटल नेक है। इलेक्ट्रिकल जो है वो बॉटल नेक है। ठीक, आज भी आपका प्रोसेसर जो है वो चंद गीगाबिट पर सेकंड से ज्यादा की प्रोसेसिंग, ये साइकिल को प्रोसेस करने की कैपेबिलिटी नहीं रखता, क्योंकि ऑप्टिकल तो टेरास में बात करने की बात करता है।
टेराबिट्स पर सेकेंड। दैट इज द बिगेस्ट स्टिल ए बॉटलनेक कि रहना भी पड़ रहा है इलेक्ट्रिकल डोमेन में, और इलेक्ट्रिकल डोमेन उस लेवल पे नहीं पहुंच रही या पहुंच सक रही जो कि ऑप्टिकल ऑफर करता है। एंड दिस वाज जस्ट फॉर योर इंटरेस्ट। तो हम आते हैं जी कि क्या है प्रॉपर्टीज ऑप्टिकल फाइबर केबल। तो हमने, और कल आपने अपनी लैब तो नहीं थी, डेट वाज क्लास, आपको मैंने ऑप्टिकल फाइबर केबल दिखाई है, ठीक है। तो कहते हैं कि although not as common as UTP because of the expenses involved, but now probably this line is not valid. Now it is common. तो मैंने कहा कि हर घर तक पहुंच गया तो कॉमन कैसे नहीं, ठीक है। तो कहते हैं कि आइडियल फॉर सम नेटवर्किंग सिनेरियो, यस इट इज आइडियल फॉर नेटवर्किंग सिनेरियोज। जैसे कि आप लोगों ने कहा कि जी हमारी डिमांड है कि अब हमें हाई कैपेसिटी, हाई स्पीड मिले, हाई बैंडविड्थ मिले, तो that can offer, that's the reason it is they become an ideal solution। और क्यों, तो हमारे लिए यानी दोनों के लिए खूबसूरत सोल्यूशन है। दोनों से मुराद यूजर भी और प्रोवाइडर भी। यूजर को तो स्पीड मिल गई, प्रोवाइडर को लॉन्गर डिस्टेंस मिल गया, प्रोवाइडर को लॉन्गर डिस्टेंस मिल गया। यानी कि अब आप किलोमीटर्स, मिसाल के तौर पे अगर आप वॉइस कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो पिशावर और रावलपिंडी के दरमियान यू डोंट नीड एनी रिपीटर। दैट इज अ वेरी गुड पॉइंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द प्रोवाइडर, क्योंकि अदरवाइज अगर आप कॉपर केबल पे जा रहे हैं, स्पेशली आप जा रहे हैं ऑन ए कोएक्स, जो बड़ी पुरानी जमाने की बात है, तो आफ्टर एवरी प्रॉब्ली 5 miles यू नीड ए रिपीटर। और रिपीटर जो है, डू रिमेंबर इट्स एन एक्टिव डिवाइस। अगर ये एक्टिव है तो वहां उसके लिए आपने बिजली का भी बंदोबस्त करना है, आपने उसके लिए बैकअप का भी बंदोबस्त करना है, आपने उसके लिए मेंटेनेंस का भी बंदोबस्त करना है, आपने उसके लिए स्टाफ का भी बंदोबस्त करना है। ये एक बहुत खूबसूरत बात है अबाउट दी ऑप्टिकल फाइबर, इट प्रोवाइड यू हायर, एक तरफ तो आपको हायर बैंडविड्थ देता है और दूसरी तरफ आपको हाई डिस्टेंसेस, लॉन्गर डिस्टेंसेस भी देता है। और क्यों लॉन्गर डिस्टेंसेस देता है? क्योंकि इसमें एटेन्यूएशन कम है, इसमें सिग्नल की स्ट्रेंथ जो है वो बड़ी देर से कम होती है। बड़े लॉन्ग डिस्टेंस पे जब पिशावर से इस्लामाबाद पहुंच जाए फिर हम समझते हैं कि ये कमजोर हो गया है, अदरवाइज इट इज गुड। और दूसरी बात, जैसे अभी हमने कहा था RFI और EMI, ये एक इलेक्ट्रिक सिग्नल ही नहीं है, इस पे RFI और EMI का असर नहीं। भी बहुत अच्छी बात है अबाउट दी ऑप्टिकल फाइबर। कहते हैं कि जी किस चीज से मिलकर बनता है, या तो ये प्योर ग्लास सिलिका से बनता है या ये प्लास्टिक से बनता है। और अगर ये प्योर ग्लास है तो, या हाई स्पीड है, वेरी हाई स्पीड है, तो वी यूज दी एलईडी लेजर, यूज दी लेजर्स फॉर हाई स्पीड या लॉन्ग डिस्टेंस। हाई स्पीड लॉन्ग डिस्टेंस, जिसको लॉन्ग हॉल भी कहते हैं, लॉन्ग हॉल भी कहते हैं। मतलब हाई स्पीड लॉन्ग हॉल कम्युनिकेशन, lasers are used as a transmitter of these signals. And for medium speed and short haul, especially short haul, we use the LEDs as the source, transmitter source। तो वो यही कह रहा है कि uses the laser or LED to encode bits as pulses of light। क्योंकि लाजमी तौर पे लेजर को आप अपना इलेक्ट्रिकल सिग्नल इनपुट करेंगे, और ये आपको आउटपुट में क्या देगा, ऑप्टिकल सिग्नल देगा। यही काम आपका एलईडी भी करता है। रिलेट करना चाहिए लेजर है, चाहिए एलईडी है, लेजर है या एलईडी है, या आप इनपुट इसको जो दे रहे होते हैं वो एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है, जो आउटपुट ये आपको दे रहा होता है वो एक ऑप्टिकल सिग्नल होता है। इसका मतलब है जैसे ओई कन्वर्टर कहा था, ये ओई कन्वर्टर है, ये इलेक्ट्रिकल टू ऑप्टिकल कन्वर्टर है, इलेक्ट्रिकल टू ऑप्टिकल कन्वर्टर। बात समझ आ गई? इसी तरह रिसीवर एंड के ऊपर आपके ऑप्टिकल डिटेक्टर्स होते हैं, जिन पे आप गिराते हैं लाइट,
जिन पे आप गिराते हैं लाइट, इनपुट करते हैं लाइट, और आउटपुट वो आपको देता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल। अगेन एन ओई कन्वर्टर, ऑप्टिकल टू इलेक्ट्रिकल कन्वर्टर। बात समझ आ गई मेरी? और ये भी बताता चलूं कि आपकी जो ऑप्टिकल फाइबर है, आप कह सकते हैं, मैं आपको ये जब आप क्लास में आए वापस तो मुझे याद कराइएगा, तो मैं आपको वेव गाइड दिखा दूं, वेव गाइड दिखा दूं। स्पेशली वेव गाइड जो है वो हमारे अगेन अर्थ स्टेशन पे, जहाँ पे आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल आप ट्रेवल करवाते हैं, मिसाल के तौर पे फ्रॉम दी ट्रांसमिट फ्रॉम दी एंटेना टू दी ट्रांसमीटर और रिसीवर, तो वहां पे ये वेव गाइड इस्तेमाल होती है। वेव गाइड कुछ भी नहीं है मां सिवाय एक खाली हॉलो, चाहे वो सर्कुलर है, चाहे वो रेक्टेंगुलर है, चाहे वो स्क्वायर है, एक पाइप कैन, दिस इज जो कि सिग्नल लेकर जाता है, उसको कहते हैं वेव गाइड। वेव गाइड। इसलिए बाद लोग कहते हैं कि हमारा जो ऑप्टिकल फाइबर है, ये भी तो क्या कर रहा है, लाइट को लेकर जा रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ। तो हम कह सकते हैं कि ये ऑप्टिकल वेव गाइड है, ये ऑप्टिकल वेव गाइड है। लेकिन ये याद रखें कि आपका ये जो वेव गाइड जो आप इस्तेमाल करते हैं, स्पेशली वायरलेस कम्युनिकेशन में, वायरलेस कम्युनिकेशन में यहाँ पे ये हलो होता है। ये भी आपका फाइबर के हलो नहीं होता, ये फाइबर है, ये आपके बाल की तरह है, बाल आपका हलो नहीं होता, लेकिन लुक्स लाइक ए गाइड, वेव गाइड। इसलिए यहाँ पे इसने लिखा है कि the optical fiber, the fiber optic cable acts as a waveguide to transmit light between two ends with minimal signal loss। बात समझ आ रही? ओके, अब मैं जो चीज आपको बताना चाहता हूँ लेडीज एंड जेंटलमैन, वो ये है कि इस स्लाइड पे आने से पहले ये क्लियर करना चाहता हूँ कि स्ट्रक्चर ऑफ द फाइबर क्या है। स्ट्रक्चर, STRUCT, स्ट्रक्चर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। और जब स्ट्रक्चर क्लियर कर लूं कामरान, तो फिर मेरा टॉपिक होगा कि इसमें लाइट प्रोपेगेशन कैसी होती है, लाइट की प्रोपेगेशन कैसी होती है। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हम पढ़ने के बाद फिर हम आ जाएंगे कि सिंगल मोड फाइबर क्या है, मल्टी मोड फाइबर क्या है, और वगैरह, और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो जेंटलमैन याद ये रखिए कि स्ट्रक्चर ऑफ फाइबर ये है, इसमें आपको नजर नहीं आएगा, लेकिन अगर ये फाइबर है तो बेसिकली इसके अंदर एक अलग, कह लें कि मटेरियल, मटेरियल तो सेम है, लेकिन अभी क्लियर करता हूं। एक को मैंने ग्रीन से रिप्रेजेंट किया और एक को मैंने येलो से रिप्रेजेंट कर दिया, लाइक हियर। तो जेंटलमैन, ये जो दरमियान, ये जो ऊपर वाला है पार्ट है, ग्रीन से जो मैंने रिप्रेजेंट किया है, यानी कि ये पार्ट जिसको मैं डैश लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, दिस इज कॉल्ड क्लैडिंग, दिस इज कॉल्ड क्लैडिंग। और जो मैंने सेंटर में रिप्रेजेंट किया, ये जगह, दिस इज कॉल्ड कोर। क्लियर हो गया? कोर क्या है, क्लैडिंग क्या है? ये बिल्कुल इसी तरह आप जूम कर लें कि आपने एक बारीक कोई चीज ली और उसके ऊपर आपने कोई पेंट कर दिया, तो पेंट एक अलग, अल्दो के यहाँ पे लेकिन एक फर्क ये है जो कि आपको समझना होगा कि ये दोनों ही एक ही मटेरियल है। यहाँ पे तो मैंने जो एग्जांपल दे रहा हूँ कि लेट करें, अगर ये पेन है जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, या पेंसिल है, वट, इसके ऊपर एक आप कलर कर दें, या एक कागज इसके ऊपर रोल कर दें, तो दो डिफरेंट लेयर्स हो जाएंगी। यहाँ पे ये दोनों एक ही मटेरियल है। अगर एक ग्लास है तो दोनों ग्लास, आप कहेंगे फर्क क्या है? आपका सवाल फिर ये होगा कि जी फिर इनमें फर्क क्या है? सिंपल इनमें फर्क ये है कि अभी आप समझ जाएंगे कि इनका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो डिफरेंट है, इन दोनों की जो डेंसिटी है वो डिफरेंट। बात को समझ आ रही?
शाबाश, समझ में आ रही तो क्वेश्चन करें। ये क्वेश्चन ना कीजिएगा कि क्यों इनकी वो डिफरेंट है, क्योंकि वो तो डेफिनेटली मुझे एक्सप्लेन करना है, लेकिन ये जी बिल्कुल देयर इज समथिंग इन चार्ट एंड द चार्ट इज सेइंग दैट्स ओके। तो हमने कहा कि इनमें फर्क ये है दोनों में कि अंदर वाला और बाहर वाला जो दो लेयर्स हैं कह ली, ये लेयर्स का मटेरियल सेम है, लेकिन मटेरियल को बनाते वक्त उनकी डेंसिटी को, उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफरेंट रखा। ओके जी, अब इस बात को क्लियर कर, इसको इस तरह करते हैं कि अगर मैं इससे पहले थोड़ी सी चीजें आपके साथ शेयर करता हूँ। अगर ये मेरा एक बाउंड्री है और यहाँ पे मैं रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट करता हूं और लेट करें कि ये एक ट्रांसपेरेंट मीडियम, तो अगर यहाँ पे एक रे ऑफ लाइट, सॉरी ये एक पॉलिश्ड सरफेस, ये एक पॉलिश्ड सरफेस जैसे मिरर, जैसे प्लेन मिरर, तो क्या होगा अगर प्लेन मिरर पे एक रे ऑफ लाइट आके स्ट्राइक करती है, तो आपको पता है कि जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस से ये स्ट्राइक की, उसी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के साथ ये वापस उसी मीडियम में वापस लौट जाती है, और इस अमल को कहते हैं रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो क्या पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर ये एक ट्रांसपेरेंट मीडियम, जैसे मिसाल के तौर पे वाटर, ये लेट करें कि वाटर है और ये एयर है, दो डिफरेंट मीडियम्स हैं। ओके, अब आपने देखा होगा कि अगर एक रे ऑफ लाइट यहां पे आके स्ट्राइक कर इस पॉइंट ओ पे, तो क्या होगा आमतौर पे, क्योंकि ये एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, तो रे ऑफ लाइट विल गो टू द नेक्स्ट। लगता ऐसे है कि ये रे ऑफ लाइट यूं स्ट्रेट दूसरे मीडियम में चली जाए, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं है। रियलिटी में कुछ यूं होता है लेडीज एंड जेंटलमैन कि मैं एक रेड कलर को इस्तेमाल करता हूँ इधर, और इसको कहते हैं नॉर्मल, जो मैंने कैपिटल में लिखा एन डैश लिखा है, इसको कहते हैं नॉर्मल। तो ये रे ऑफ लाइट या तो बेंड हो जाएगी टूवर्ड्स द नॉर्मल, जिसको मैंने रेड से रिप्रेजेंट किया है, या ये बेंड हो जाएगी, जिसको मैं ग्रीन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अगर इसका कलर आपको थोड़ा कम नजर आ रहा है तो मैं सोचता हूँ बड़ा कर देता हूं ताकि आपको नजर आए। ये जी मैंने अब आपको उम्मीद करता हूं कि नजर आए। तो यानी कि या तो ये 1 के से जाएगी या ये 2 से जाएगी, 3 से कभी भी नहीं जाएगी। ये तो क्लियर है ना, क्लास 8, 7 में, 9 में, 10 में सारी चीजें आपने पढ़ी थी। और इस अमल को कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ। अब हम आते हैं तो रिफ्रैक्शन, इसमें कोई क्वेश्चन है कि मैं आगे बढ़ सकता हूं? आगे बढ़ता हूँ फिर। अब आपके साथ छोटी सी गपशप लगाता हूँ और फिर वापस अपने टॉपिक पे आता हूँ कि अगर ये लेट करें कि एक गार्डन, जो मैंने ग्रीन से बॉक्स बनाया, ये गार्डन है जहां पे बड़े खूबसूरत फ्लावर्स, बहुत ही खूबसूरत एनिमल्स और बहुत ही खूबसूरत झूले वगैरह मौजूद, बच्चों की के लिए हर किस्म की खूबसूरती यहाँ में मौजूद है। दो एज्यूम करें कि आपका कोई छोटा बच्चा यानी भतीजा है, भांजा है, वॉटेवर, आपके साथ वो इस गेट के ऊपर इन हुआ, ये गेट लगा हुआ है, यहां से इन हुआ, तो ये बच्चा क्या करेगा? क्या ख्याल है जब अब वो इस गार्डन में पहुंचेगा
तो क्या करेगा? व्हाट इज योर ओपिनियन? दौड़ेगा सर। दौड़ेगा, भागेगा, आपसे आपसे अपनी जान छुड़ा के उधर चला जाएगा। इसका मतलब ये है कि आप उसके के लिए एक मुश्किल मीडियम थे, और ये उनके लिए एक लाइट मीडियम था, खुशी वाला मीडियम था, खुशी वाला मीडियम था, ये लाइट मीडियम था गार्डन उसके लिए। तो जिसका मतलब है कि जब डेंस से लाइट मीडियम में जाया जाता है, तो अवे, आप नॉर्मल थे, आपसे उसने हाथ छुड़ा के भाग गया, इसका मतलब अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये G2 अवे फ्रॉम नॉर्मल। टू आप राइट साइड में जो मैं जहां पे मेरा कर्सर मूव कर रहा है, इसका मतलब है कि ये रे ऑफ लाइट उस ग्रीन पाथ पे चली जाए। ओके, दूसरी एग्जांपल लेते हैं। लेट करें कि यही गार्डन है, सब कुछ वही है, लेकिन उसको यहाँ पे गलती से एक बहुत ही खौफनाक कुत्ता दिखाई दे गया, डॉग इज हियर, और वो डॉग से बच्चा डरता भी है, और वो कुत्ता भाग भी रहा है इसकी तरफ। तो ये बच्चा क्या करेगा? आपकी तरफ भाग आएगा। यानी कि उसके लिए अब ये डॉग वाला माहौल जो है ये डेंस है, और आप उसके लिए एक लाइट मीडियम का बन के सामने आ गए कि ये मुझे मेरा मामू चाचू मुझे बचा लेगा, लाइट है उसकी। तो इसका मतलब है कि ही विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, यानी ये नंबर वन वाला ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ये नंबर वन वाला ऑप्शन हो जाएगा। अब हमें कौन सा चाहिए? हमें ये नंबर टू वाला चाहिए। इसका मतलब कि हमें चाहिए कि ये लाइट मीडियम हो और ये डेंस मीडियम। इसका मतलब हम चाहते हैं कि कोर जो है, जो अभी मैंने ऊपर कोर और क्लैडिंग आपके सामने क्लियर की है, कोर शुड बी dense and the second medium, which is cladding in this case, should be light, less dense. Light से मुराद less dense. Okay, तो क्या होगा? अब अगर ये रे ऑफ लाइट यहाँ आती है तो इट बेंड अवे। अगर लेडीज एंड जेंटलमैन इसका मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस थोड़ा सा इंक्रीज कर दूं, अगर मैं इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज कर दूं, ये जिससे आपको नजर आ रहा है, अब एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ गया है, तो probably this ray of light will go parallel to the field, parallel to the medium, parallel to the boundary, like here. इसको मैं नंबर 3 कह लेता हूं। और अगर मैं थोड़ा सा और भी एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज कर दूं, इट विल बेंड इन बैक इनटू द सेम मीडियम, जिसको मैं नंबर 4 कह देता हूं। इस 4 नंबर को कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। याद है? क्लियर है? शाबाश। Is there any question about the total internal reflection? तो अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो लेडीज एंड जेंटलमैन, यही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमेना आपके इस ऑप्टिकल फाइबर में इस्तेमाल है। क्योंकि हम नहीं चाहते कि जो रे ऑफ लाइट, हम नहीं चाहते कि जो रे ऑफ लाइट इसकी कोर में अंदर आई, ये इस क्लैडिंग में जाए और क्लैडिंग से बाहर चली जाए, बिकॉज दिस लाइट इज नॉट लाइट बट दिस इज इंफॉर्मेशन, that light is carrying information, so we don't want to lose this information. बात समझ आ रही? शाबाश। खामोशी क्यों? मुअज्जम, कामरान, कायनात, लाइबा, मामा, रफी, सुमैया जी। ऑल फाइन। तो चलिए लेडीज एंड जेंटलमैन, अभी आपके इस
कि तकरीबन there are 5 things in chat. Clear? Yes. Okay, nice. So everyone is happy, clear, nice. तो लेडीज एंड जेंटलमैन, क्योंकि अब तकरीबन 1 मिनट अप्रोक्सीमेटली रहता है इस कनेक्शन में, तो इसी यहीं से इंशाल्लाह ताला कल मैं आपके साथ, कल भी आपको हमने पहले डिसाइड किया हुआ है सर। क्वेश्चन है एक, जीवित को 2 क्वेश्चन करें। सर कोएक्सियल के जो दो टाइप्स थे वो थिन नेट और थिक नेट, वो जरा दोबारा से एक्सप्लेन करें। जी, क्वेश्चन हम मुझसे पूछा गया कि थिन नेट और थिक नेट में क्या, लाजमी तौर पे जो फर्क आपको मैंने डिस्कस किया वो था डिस्टेंस का, कि आपकी थिन नेट केबल जो है, थिन नेट केबल जो है वो ले जा सकती है आपका सिग्नल बगैर किसी रिपीटेशन के अप टू 200 मीटर, जबकि थिकनेट केबल जो है, थिकनेट केबल जो है दैट कैन कैरी द सिग्नल अप टू 500 मीटर। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे एटेन्युएशन कम है, ज्यादा है, एटेन्युएशन ज्यादा है, बिग एटेन्युएशन है। और यहाँ पे आपने उसी केबल को, उसी कोएक्सियल को इस तरह डिजाइन किया कि एटेन्युएशन को रिड्यूस किया। एटेन्युएशन के कम होने की वजह से अब वो ज्यादा डिस्टेंस तक सिग्नल को ले जा सकते। समथिंग इन द चैट। ओके, वेरी सिंपल। आप इलेक्ट्रिक इंजीनियर हैं, समझ गए। ओके,